So the first criterion, that is AAA similarity or AA similarity. AAA और AA ये दोनों सेम है. क्यों सेम है? क्योंकि यहाँ पे AA का मतलब होता है angles of one triangle. Two angles of one triangle are respectively equal to the corresponding two angles of another triangle. Then the triangles are similar by AA similarity. और जो AA similarity होती है वो जब दो एंगल्स ऑलरेडी इक्वल है तो तीसरा एंगल अपने आप इक्वल हो जाता है, बिकॉज द सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री. सो दैट इज AA सिमिलैरिटी और AAA सिमिलैरिटी. सो द स्टेटमेंट यू कैन नोट डाउन. इफ एंगल्स ऑफ वन ट्रायंगल are respectively equal to the corresponding angles of another triangle. Corresponding word is very important here. Corresponding angles of another triangle. Then the triangles are said to be similar by AAA similarity. The other one is AA. So if two angles, यहाँ पे all three angles की बात की थी, यदि two angles है तो AA similarity लगी. ठीक है? We can take an example here. Suppose if you have two parallel lines, AB is parallel to CD. AB is parallel to CD. And these are intersecting at the point O. These are intersecting at the point O. We have to check whether these two triangles are similar or not. So here it is given AB is parallel to DC. अब ये दोनों triangles को यदि हमको similar proof करना है तो हम parallel की property use करेंगे. Means here as AB is parallel to DC, that means this angle, if I mark this as angle, this is angle OAB is equal to angle OCD. Angle OAB is equal to angle OCD because they are alternate interior angles. So here it is angle OAB equal to angle OCD because these are alternate interior angles. Another one you can see, we can take, ये सबसे पहले दिखाई देता है वर्टिकली अपोजिट. ओके, तो इसलिए ये वाला एंगल यदि हम मार्क करते हैं, सो नाउ वी हैव एंगल AOB इक्वल टू एंगल COD because these are vertically opposite angles. तो अब यहाँ पे यदि हमने सिर्फ दो एंगल मार्क किए हैं, सिर्फ दो ही एंगल मार्क किए हैं, तो हम लिख सकते हैं AA सिमिलैरिटी. लेकिन हम तीसरा एंगल भी मार्क कर सकते हैं क्योंकि ये भी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है. यदि हम तीसरा एंगल रिप्रेजेंट करेंगे तो यहाँ पर AAA सिमिलैरिटी हो जाएगी. Minimum that can be considered is AA similarity. So here we can say by AA similarity. क्योंकि हमने दो ही मार्क किए हैं इसलिए हम AA similarity लिख रहे हैं. And it is understood that these angles are also equal. So we can write here also AAA similarity. दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है बच्चों. दो एंगल्स जब इक्वल होते हैं तीसरा अपने आप इक्वल हो जाता है. तो AA similarity और AAA similarity. Now see how to write the similarity relation, that is very important. अब यहाँ पे कल भी हमने डिस्कस किया था कि आप जो एंगल्स है, इक्वल एंगल्स, उनको सेम ऑर्डर में लिखना है. जैसे इक्वल है वैसे ही लिखना है.
तो अब यहाँ पे देखो रेड यदि मैं सबसे पहले लिखता हूँ, रेड, यहाँ पे रेड जो मार्क किया है, यदि मैं सबसे पहले रेड लिखूंगा, सो आई विल राइट हियर ए ऑन दिस साइड, सिमिलैरिटी का साइन बीच में, सी ऑन दी अदर साइड। ओके, अब दूसरा मैं ग्रीन लिख रहा हूं, ग्रीन लिख रहा हूं तो ओ इज हियर, ओ इज हियर, ठीक है। और तीसरा मैं बचा हुआ लिखूंगा बी और डी, तो बी इज ऑन दिस साइड and D is on this side. So this way triangle AOB is similar to triangle COD. Clear? So this way it is very important to consider the corresponding angles in a proper order. और जब भी हम similarity लिखते हैं तो ये ध्यान रखना है equal angles same number पे लिखेंगे। A equal to C है यहाँ पर, इसलिए 1 पोजीशन पे A और C लिखा है। O इज इक्वल टू O है, O मतलब आपका AOBCOD है, तो O इज इक्वल टू O है, तो ये पोजीशन नंबर 2 पे लिखा है। और B इज इक्वल टू D है, तो ये पोजीशन नंबर 3 पे लिखा है। हाँ, आप ये कर सकते हैं, यू कैन ऑल्सो राइट इट एज BOA सिमिलर टू DOC, डजंट मैटर, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, क्योंकि यहाँ पर ऑर्डर हमने चेंज किया लेकिन रिलेशन वही है, ठीक है। हम यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं OAB सिमिलर टू, अब O का इक्वल O है तो O पहले लिखेंगे, A का इक्वल C है तो C बाद में सेकंड पोजीशन पे लिखेंगे, B का इक्वल D है तो वो थर्ड पोजीशन पे आएगा। तो OAB सिमिलर टू OCD, ऑल दीज 3 रिलेशंस आर करेक्ट, बट इफ यू राइट इट लाइक दिस कि ट्राइंगल AOB इज similar to triangle DOC or triangle DCO, then both these relations will be absolutely wrong. Why absolutely wrong? क्योंकि A और D इक्वल एंगल नहीं है बच्चों, O और O तो इक्वल है, B और C इक्वल नहीं है। तो आपको ये ध्यान रखना है बच्चों, जब भी आप सिमिलैरिटी रिलेशन लिखते हैं, you need to be careful that you have to write the equal angles in the same order, that is AAA similarity here. Okay, understood? Second similarity criterion is SSS. Okay, बेटा एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, सिमिलैरिटी में एंगल्स इक्वल होना चाहिए, करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल, और जो साइड्स होते हैं वो प्रोपोर्शनल होते हैं, हमेशा इक्वल नहीं होंगे कभी भी, ये ध्यान रखिएगा। साइड्स आर प्रोपोर्शनल, एंगल्स आर इक्वल एंड साइड्स आर प्रोपोर्शनल। और प्रोपोर्शनल का मतलब हमने पहले भी डिस्कस किया था, दैट इज दे आर इन द सेम रेशियो। ओके, तो पहले इसका स्टेटमेंट लिखिए बच्चों, SSS सिमिलैरिटी क्राइटेरियन, SSS सिमिलैरिटी क्राइटेरियन। If sides of one triangle, are respectively proportional to the corresponding sides of another triangle, then the triangles are said to be similar by SSS similarity. Sides of one triangle, ध्यान से देखिएगा बच्चों, ध्यान से सुनिएगा। Sides of one triangle are respectively proportional to the corresponding sides of another triangle. Corresponding sides बोला है, तो I am drawing the figure here. Suppose मान लीजिए आपके पास एक ट्राइंगल ये है,
जिसमें कि साइड्स दिए हुए 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। दूसरा ट्राइंगल आपके पास ये है जिसमें कि आपको साइड्स दिए हैं सपोज 4 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर, एंड दिस इज लेबल्ड एज सपोज ABC here, ABC, and this is PQR. Okay, so here what we observe that the ratio of sides, that is AB upon PQ, AB upon PQ, AB upon PQ, the ratio is 2 upon 4, which is equal to 1 by 2. BC upon QR, BC upon QR, the ratio is 4 by 8, which is again equal to 1 by 2. AC upon PR, AC upon PR, again the ratio is 3 by 6, which is again equal to 1 upon 2. So from here we observe that AB upon PQ equal to BC upon QR equal to AC upon PR. तो ये हो गया sides are proportional, therefore triangles are similar. अब बात आती है कि हमें सिमिलैरिटी कैसे लिखना है। ये बहुत ध्यान से समझिएगा बच्चों, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट हियर, क्योंकि यदि आपको ये समझ में आ गया तो समझ लीजिए चैप्टर आपका पूरा कंप्लीट हो गया। ओके, सिमिलैरिटी, हाउ टू राइट द सिमिलैरिटी। अब देखिएगा यहाँ पे AB अपॉन PQ लिखा है बच्चों, तो इसका मतलब ये है कि AB करस्पॉन्ड्स टू PQ, AB करस्पॉन्ड्स टू PQ। इसका मतलब अब AB का जो अपोजिट एंगल है, मतलब एंगल C हो गया रेड मार्क, एंगल C will be equal to angle R, एंगल C will be equal to angle R। जब भी हम सिमिलैरिटी लिखते हैं तो वो हमको एंगल से देखना होता है, साइड से स्टेटस क्लियर नहीं होता है, तो हमेशा हम एंगल से देख करके और इक्वल ऑर्डर में लिखते हैं, सेम ऑर्डर में लिखते हैं, इक्वल एंगल्स इन सेम ऑर्डर। तो एंगल C इज इक्वल टू एंगल R हो गया। अब देखिए दूसरा रेशियो मैंने यहाँ लिखा है BC अपॉन QR, BC अपॉन QR, मतलब ये जो यहाँ पर BC साइड है आपका, ये BC जो साइड है ये किसको करस्पॉन्ड कर रहा है, QR को करस्पॉन्ड कर रहा है। BC करस्पॉन्ड्स टू QR, दैट मीन्स एंगल A, BC के सामने वाला एंगल A है, एंगल A किसके इक्वल होगा, एंगल P के इक्वल होगा। जो करस्पॉन्डिंग साइड से उनके अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। अब दो हमने मार्क कर लिए, तीसरा बचा हुआ अपने आप मिल जाएगा आपको। सो नाउ लेट्स सी, लेट्स राइट द करस्पॉन्डिंग एंगल्स इन द सेम ऑर्डर। नाउ इफ आई राइट फर्स्ट A, पहले मैंने A लिखा तो यहां पर मैं P लिखूं, ध्यान रखिएगा बच्चों, सेम ऑर्डर, A का इक्वल है P, रिमेनिंग था B का इक्वल है Q, तो B का इक्वल हो गया Q, C का इक्वल है R, तो C का इक्वल हो गया R। तो ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR, ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। This is by SSS similarity. Okay, we'll take one more example related to this. First you note it down. पहले आप इसको नोट कर लें बच्चों, समझ लें अच्छे से, फिर उसके बाद एक और एग्जाम्पल बताएंगे। Okay, let's take another example to explain this SSS similarity. Now you see, if I have a triangle like this, एक ट्राइंगल ये दिया है, इसके साइड्स हैं आपके पास 1.5 सेंटीमीटर्स, 2.5 सेंटीमीटर्स and 3 centimeters, right? Another triangle is given something like this, कुछ ऐसा दिया हुआ है, this is labeled here as KLM, GOD, okay, और DEF, DEF. Okay, now here it is. Suppose this side is
3 centimeters, this one is 5 and the other one is 6 centimeters. Okay, so here what we see now, when we find out the ratio, आप यदि 1.5/5 लिखोगे, 1.5/5 2.5/6 तो रेशियो सेम नहीं आएगा। जैसे अभी यहाँ पर लिखा हुआ है ऐसे ही यदि आपने रेशियो निकाल लिया 1.5/5 2.5/6 3/3, तो रेशियो इज नॉट सेम। तो रेशियो कब सेम होगा? जब हम करस्पॉन्डिंग साइड्स को कंपेयर करेंगे। तो करस्पॉन्डिंग साइड्स आपको देखना होगा कि कैसे करस्पॉन्डिंग साइड्स मिल रहे हैं यहाँ पे। अब 1.5 और 3 का रेशियो देखो, 1.5 और 3 का रेशियो, दैट मीन्स you have to see the ratio, find the ratio of KL upon EF, KL upon EF, KL upon EF 1.5/3 which is equal to 1/2। दूसरा देखते हैं 2.5, देखिए 1/2 का रेशियो आया था यहाँ पे, तो उसके अकॉर्डिंग देखिएगा 2.5 का डबल कौन सा है? 5 है। तो यहाँ पर लेते हैं KM upon DF, KM upon DF, this is 2.5/5, again it is equal to 1/2। अब जो तीसरा बच गया that is LM, LM upon DE, LM upon DE, that is 3/6 which is again equal to 1/2। So we observe that the ratios are same here, और रेशियो कौन से इक्वल है वो भी देखें। KL upon EF equal to KM upon DF equal to LM upon DE। अब आपको इक्वल एंगल्स आइडेंटिफाई करना है बच्चों। तो आप देखिए KL, KL का अपोजिट है M, KL का अपोजिट है M, ठीक है। अब KL का करस्पॉन्डिंग था EF, तो EF का अपोजिट है D, EF का अपोजिट है D। दूसरा देखते हैं KM, KM, KM का अपोजिट है L, KM का अपोजिट है L। और DF, DF लिखा है तो DF का अपोजिट है E, DF का अपोजिट है E। अब हम लिखेंगे सिमिलैरिटी रिलेशन। तो इफ आई राइट द ऑर्डर एज हियर, आई राइट द ऑर्डर एज KLM, KLM लिखा। तो अब आपको देखना है बच्चों एंगल K किसके इक्वल था? F के इक्वल था। तो ये आएगा F सबसे पहले, क्योंकि थर्ड वाला रिमेनिंग देखिएगा K F के इक्वल था। L ग्रीन वाला E के इक्वल है, तो E हो गया। और रेड बचा M D के इक्वल है, तो M आपका D के इक्वल हो गया। दैट मीन्स ट्राइंगल KLM इज सिमिलर टू ट्राइंगल FED। ओके, क्लियर? ABC, ठीक है। ये फिगर है, इसमें ट्राइंगल ABC दिया है। P is any point on AC and it is given angle APB, ये वाला एंगल APB is equal to angle ABC। और आपको शो करना है, you have to prove that triangle APB is similar to triangle ABC। ट्राइंगल APB is similar to triangle ABC। तो बेटा इसको प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो दो ट्राइंगल्स हमको दिख रहे हैं एज इट इज हम अलग से बना लेते हैं। लेट्स ड्रॉ द टू ट्राइंगल्स सेपरेटली। हियर आई एम ड्रॉइंग दिस फिगर लाइक दिस। दिस इज ट्राइंगल APB, हियर इट इज A, दिस इज P, दिस वन इज B, ठीक है। अब B में और यहां पर दूसरा मैं ट्राइंगल यहां पर पूरा बना लेता हूं। दिस इज ABC, दिस इज ABC। ओके, अब देखिएगा ये दो ट्राइंगल्स में हम मार्क करते हैं। लेट्स मार्क हियर। दिस इज ना एंगल A वाला एंगल जो है वो दोनों में कॉमन है। दिस एंगल A
is common in both. AP B में भी आ रहा है और AB C में भी आ रहा है. Angle A is common in both. So here angle A is common in both triangles. ठीक है. दूसरा आप देखिए जो कि ऑलरेडी आपको यहाँ पर लिखा हुआ दिया हुआ है. This is angle APB. Here it is angle APB. ये वाला एंगल APB किसके इक्वल है? एंगल ABC के इक्वल है. ठीक है. फर्स्ट वाला हमने ऑलरेडी मार्क किया. दिस वाज एंगल A is common in both. और दूसरा हमने मार्क किया एंगल APB is equal to एंगल ABC. दिस इज गिवन. तो बेटा दो एंगल्स हमारे इक्वल आ गए. एंगल A is equal to एंगल A लिख सकते हैं यहाँ पर. दिस इज कॉमन क्योंकि ये पूरा है. अब आप सोचेंगे कि B is equal to B क्यों नहीं लिखा सर ने? B is equal to B इसलिए नहीं लिखा क्योंकि यहाँ पे जो B लिया वो सिर्फ इतना पार्ट है और यहाँ जो B लिया है वो ये पूरा एंगल है. इसलिए हमने B is equal to B नहीं लिखा. वर्टेक्स जरूर कॉमन है लेकिन एंगल इक्वल नहीं है. ओके. सो हियर वी हैव एंगल A is equal to एंगल A. पूरा एंगल A लिया था इसलिए एंगल A is equal to एंगल A लिखा है. फिर दूसरा APB is equal to ABC लिखा है. ठीक है. Now let's write the similarity relation. अब A corresponds to A. So triangle A. ठीक है. Triangle A. This is again triangle A. A corresponds to A. Right? अब P corresponds to B. तो यहाँ पे जब P लिखेंगे तो यहाँ पर B लिखा जाएगा. अब AP तीसरा बच गया B. APB और यहाँ पर तीसरा बचा हुआ है आपका C. APB सिमिलर टू ABC. बेटा कौन सी सिमिलैरिटी हमने यूज की? दिस इज बाय AA सिमिलैरिटी. दिस इज बाय AA सिमिलैरिटी. राइट. सो यू नीड टू आइडेंटिफाई द इक्वल एंगल्स and according to that you can apply the similarity. और ये जस्ट एक सजेशन है कि जब भी ऐसे मिक्स्ड फिगर्स आते हैं कि एक ही ट्राइंगल में एक ही फिगर में दो ट्राइंगल्स मर्ज किए हुए दिख रहे हैं तो बेहतर होगा जैसे मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया, आप रफ वर्क के तौर पर आप दो ट्राइंगल्स अलग अलग बना लें, फिर उसमें आप कॉमन और इक्वल मार्क कर दें. इट वुड बी इजियर फॉर यू टू राइट द सिमिलैरिटी रिलेशन. ओके. राइट. Clear? Okay, so that's all for today. Yes.